Praise the Lord, brothers and sisters. आज हम मंगलवार का दिन आया है, the second week of November. वो प्रभु की वचन देखेंगे. Sister Sonali on the line. Yes, brother. अच्छा. So we were seeing on Sunday also about the old covenant and comparing the old covenant with the new covenant. और हमने रविवार की सभा में भी ऐसा ही सीखा था कि नए नियम की तुलना हम पुराने नियम से कर रहे थे. And we know that in the 10 commandments, the 10th commandment was that God said you shall not covet or have greed. और हम 10 आज्ञाओं के बारे में सीख रहे थे, जिसमें अंतिम जो आज्ञा है वो ये है कि तुम किसी की वस्तु का लालच मत करना. That is not a single person in the old covenant could keep that commandment. पर उनमें से पुराने नियम में एक भी व्यक्ति इस वाचा का पालन नहीं कर पाया. All the other commandments, not worshipping idols, not telling lies, honoring your father and mother, then so many, all the others they could keep. और मूर्ति पूजा मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, झूठ मत बोलना, ये सब तो वो कर पाते थे. Everything on the outside they could do well, but the inner desires of their heart, the inner the sinful desires they could not control. और बाहरी रूप से तो सब चीजों का पालन कर पाते थे, बाहर से तो दिखता था, पर अंदर से उनके मन से वो उन बातों को पालन नहीं कर पाते थे. उनका मन प्रभु के साथ नहीं था. And that is why Jesus came in this world to save us from our sins. और इसीलिए यीशु मसीह आए कि हमें हमारे पापों से छुड़ा ले. So it is not just forgiveness of sins, but saving and help us to overcome the sins. और सिर्फ पापों की क्षमा ही नहीं, पर उससे बचाना, मतलब उससे जय पाना. In the old covenant also there was forgiveness of sins. और पुराने नियम में भी पापों की क्षमा के बारे में है. And many believers only ask God to forgive their sins, but they're not able to overcome their sin. और कई जो लोग हैं जो प्रभु से पापों की क्षमा मांगते हैं, पर ये नहीं मांगते कि प्रभु इस पाप पर जय पालूं मैं. Most of our churches are filled with people who only ask, "Thank you, God, for forgiving my sin." और कई ऐसे चर्च है जहाँ पर कलीसिया है जहाँ पर जो विश्वासी है वो ऐसा बोलता है कि प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पाप क्षमा किए. But they don't praise God that God can give them victory over sin also. पर वो इसके लिए धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु आपने मेरे उस पाप पर जय भी दी है. So victory over sin comes only by the power of the Holy Spirit, because Jesus came to die for our sins. और जो पाप पर जो जय पाना है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा आ सकता है, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू बहाया हमारे लिए. And the Holy Spirit has come on the day of Pentecost and to live in our lives and to live in our hearts and to strengthen us, to show us the truth and to give us victory over sin. और पवित्र आत्मा जो था पेंतिकुस्त के दिन उतरा था हमारी पापों पर जय दिलवाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए. So in the old covenant, people could not live a higher spiritual life and could not change their character because they didn't have the ability, they didn't have the power of the Holy Spirit living in them, in their lives. पुराने नियम में जो लोग थे वो पाप पर जय पाया हुआ जीवन नहीं जीते थे, क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं थी, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था. So many of them went to heaven. We know about Abraham went to heaven. We know about Lazarus in heaven. We know Elijah to heaven. All the godly people, Elijah, Moses, they were godly people, but they went to heaven. और उनमें से कई लोग जो है वो स्वर्ग गए हैं, जैसे कि हम सुनते हैं अब्राहम जो है और मूसा है, एलीशा है, वो सब है जो वो स्वर्ग में गए हैं. Even the beggar Lazarus, he was so poor, but he was a God-fearing man. He also went to heaven. और वो जो गरीब व्यक्ति लाजर था वो भी स्वर्ग में था. Then what was the purpose? What is the advantage of Jesus coming? तो क्या फायदा हुआ है, क्या हमें मिला है जो यीशु मसीह आए हैं उसके बाद? Forgiveness of sins is also there in the old covenant, but with the new covenant, when Jesus came and gave us the power of the Holy Spirit, we have power over sin. और जो पहले भी थी पापों की क्षमा, जो पापों की क्षमा हमें मिलती थी, पर अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उस पापों पर जय भी प्राप्त होती है. So that is why the purpose of us living in the old covenant as disciples of Jesus Christ is to get his nature and to become like Jesus Christ in all our behavior. और अभी हमारे स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है और हम प्रभु के चेले कहलाते हैं. So
and everything that works in our life, God is doing some work in our life to change us. और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ प्रभु कर रहे हैं, वो सब हमें बदलने के लिए कर रहे हैं। We love Jesus because he died for us, and because of that, the Lord is working in our life to make us like Jesus. और प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहे हैं ताकि हम यीशु मसीह के समान हो सके। प्रभु इसीलिए हमारे पापों के लिए मरे भी हैं। Somebody asked the question, why are you living in this world? What is the purpose of your Christian life? किसी ने एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है? तुम इस पृथ्वी पर क्यों जी रहे हो? That is written in very clear terms in Romans chapter 8, verse 28 and 29. और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से रोमियो 8 उसके 28 और 29 वचन में लिखा हुआ है। We'll read those verses. Romans chapter 8, verse 28 and 29. हम पढ़ेंगे इन वचनों को। And we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। So the word of God says that all things that happen in my life and your life is working for some good. और प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, वे सब भलाई ही के लिए है। If you love God and want to please God, all the things happening today, that happen today, even your failures are working for your good. और यदि आप आज हार चुके हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया आपके जीवन में, तो भी वो आपकी भलाई ही के लिए हुआ है। All the people that come across your way, all the financial difficulties, the sicknesses also are working for my good. और जितनी भी बीमारियां हैं या आर्थिक संकट है या फिर जो कोई व्यक्ति आपके पास है आ जाए, जिसका सामना आप करते हो, वो सब कुछ भलाई ही के लिए है। If I love God, if I want to be a disciple, if I want to follow God, और यदि आप चेले बनना चाहते हैं, यदि आप प्रभु का पीछा करना चाहते हैं, if I don't want to follow Jesus, then I don't think that anything is going to work for good. और यदि आप प्रभु का पीछा नहीं करना चाहते, तो मुझे नहीं लगता कि सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। Then we can live like the old covenant Christians and just keep on falling into sin and asking God for forgiveness every day and just be happy with our condition. और हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पुराने वाचा में लोग थे कि वो पाप करते थे, पापों की क्षमा मांगते थे, पर वो उस परिस्थिति से उठ नहीं पाते थे। This is the condition of most people, most Christians, also born again Christians in most churches. They are just living like the old covenant people. और कई कलीसियाओं में ऐसी ही हालत है, वो अभी भी पुरानी वाचाओं में ही जी रहे हैं। Even in CFC also, most of the people are living under old covenant. और यहाँ तक कि CFC में भी कई लोग जो है पुरानी वाचा के अनुसार जी रहे हैं। Because they don't want to have a desire in their life to follow Jesus in everything. क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा नहीं है प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने के लिए किसी भी बात में। Why did God Father take all the trouble to send Jesus to die for our sins? क्यों पिता ने अपने पुत्र पर पूरी जो है तकलीफ को दे दिया, हमारे पापों के लिए मारा उसे। Not only die for our sins, live like a poor man, and God himself living like a poor man in this world, like a carpenter, getting so much insults and so much of abuse in spite of doing good to everybody and doing so many miracles. और क्यों सिर्फ पापों के लिए मरे ही नहीं है, पर उन्होंने यहाँ पर गरीबी में जीवन बिताया है, एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, बड़े का काम किया है और कई अपमान सहे हैं उन्होंने। क्यों ऐसा हुआ है? But through all these 33 years, Jesus Christ never sinned even once. पर इन पूरे 33 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी पाप नहीं किया। He came in our own flesh. क्योंकि वो आए तो अपने शरीर में ही थे। Same temptations that we face, he also faced. जितने प्रलोभन का सामना हम लोग करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह ने भी किया है। So that we also can get an example and strength, that we also can be, as it says in verse 29, we can be conformed to the image of his Son.
क्योंकि हम वो जो है हमारे लिए एक उदाहरण बन सके, हम उसके अनुसार जीवन जी सके, जैसे कि प्रभु का वचन यहाँ पर 29 वचन में कह रहा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले ठहराया भी है। Yes. So he's that you and I should become like Jesus. That's what the Father's purposes is in our own life. और प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आ जाएं, ताकि यही प्रभु का जो है उद्देश्य है। What does it mean to be conformed to the image of Jesus? और प्रभु के स्वरूप में आ जाने का मतलब क्या है? We cannot die for the sins of the other people. हम दूसरों के पापों के लिए नहीं मर सकते। We may not be able to do so many miracles and walk on water and do all these things. और हम अन्य अलग अलग तरीके के चमत्कार नहीं कर सकते, हम पानी पर नहीं चल सकते। But what we can do is we can be freed from sin. पर हम क्या कर सकते हैं? हम पाप से आजाद हो सकते हैं। Romans 6:14 says, sin will not have dominion over you. Read Romans 6:14. हम रोमियो का 6 उसका 14 वचन पढ़ेंगे। Sin will not be master over you, for you are not under the law, but under grace. और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। If you are under the law, then you will always be falling into sin and ask God forgiveness. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. क्योंकि यदि हम व्यवस्था के अधीन होते तो हम बार बार पाप में गिरते और बार बार प्रभु से बोलते कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। But if you are under grace, you ask God, Lord, help me to overcome sin. और क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है, इसलिए हम प्रभु से सहायता मांगते हैं कि प्रभु इस पर हमें जय दिलाइए। And we thank God that God has given us help to overcome so many type of sins. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें कई सारे पापों से हमें जय दिलाई है। We can overcome all sorts of anxiety, step by step, different type of anxieties. हम कई सारी चिंताओं से मुक्त हुए हैं, धीरे धीरे करके हम बहुत सारी बातों से, चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। We have more and more peace than the years passed by. और जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, हमारे साथ अच्छा होता जा रहा है, हम शांति में जीते जा रहे हैं। We don't have the same unrest, and God has helped us to overcome. और हम अशांति में नहीं रहते हैं, प्रभु ने हमें जय दिलाई है इस पर। We have love for our enemies also, and love for other people, love for our husband and wife that we did not have before. और हमारे अंदर हमारे बैरियों के प्रति प्रेम है, हमारे पति, हमारे बच्चों के प्रति हमारे अंदर प्रेम है। Because of the grace of God. ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। And God gives grace to the humble. That means those who say, Lord, I'm helpless. I cannot do anything on my own. I cannot keep your commandments. Please help me. Fill me with the Holy Spirit. Give me power. और प्रभु दीनों पर अपना अनुग्रह करते हैं, जो ये कहते हैं कि प्रभु अपनी ताकत से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करते हैं। Then I will start talking like Jesus talked. और मैं फिर उसी प्रकार बात करने लगूंगा जैसे यीशु मसीह करते थे। I will stop all rude words and gossiping, backbiting. All these things will go away from my life. मैं बहुत ही ज्यादा कठोर शब्द जो उपयोग करता था, चुगली करना, पीठ पीछे बातें करना। I will only listen to more and more to God's word and the good things rather than listen to all the nonsense that is going on in this world. और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों को सुनना पसंद करूंगा। यहाँ ऐसा नहीं कि जो संसार में हो रहा है खराब बातों को सुनना मैं पसंद नहीं करूंगा। All the TV programs and all the serials and so many things on the YouTube and unnecessary things. The Holy Spirit will say, "Now stop watching this, and God will give me victory over all these wrong desires." और ये जो बेफिजूल की चीजें हैं यूट्यूब पर, जो टीवी पर सीरियल वगैरह हैं, उससे भी प्रभु आपको आजाद करेंगे यदि आप अनुग्रह में हैं इसलिए। And by the grace of God, we can always be joyful and thankful to God. और हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। Because God is doing everything for my good. क्योंकि प्रभु जो है हमें हर एक बात मेरे लिए भलाई ही के लिए कर रहे हैं। That is why Jesus came in our own flesh. इसीलिए प्रभु जो है शरीर में होकर के आए। We were reading 1 Timothy chapter 3. पहला तिमोथियो 3। We know John 3:16. There's 1 Timothy 3:16 is also very, very important for our spiritual life and spiritual growth. हम यूहन्ना 3:16 को जानते हैं, वैसे ही पहला तिमोथियो 3:16 भी
हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक बहुत अच्छा वचन है। It says in verse 16, by common confession, great is the mystery of godliness. He who was revealed in the flesh, was vindicated in the spirit, beheld by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up to glory. और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। So the Apostle Paul is saying the mystery of godliness is great. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो कह रहे हैं कि भक्ति का भेद गंभीर है। Godliness, I don't know, godliness is becoming is like the character of Christ. और यहाँ पर जो भक्ति जो शब्द उपयोग किया गया है वो इसलिए क्योंकि जैसे प्रभु के स्वरूप में आ जाना। Godliness in English means like God, that means like Jesus Christ. और यहाँ पर है प्रभु के जैसा, यीशु मसीह के समान। And to become like Jesus Christ, it is always a mystery. और यीशु मसीह के समान होना हमेशा एक रहस्य की बात रही है। And what is this mystery? और रहस्य क्या है? God shows only those who are humble this mystery. और प्रभु उन्हीं पर प्रकट करते हैं जो दीन है। And that's why God reveals himself to those who are humble like little children and come to him like that. और जो प्रभु के सामने बालकों के समान है, जो अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, प्रभु उन्हें अपने आप को प्रकट करते हैं। All the clever people, even those who know the Bible very well, who are Bible scholars, God does not tell them at all this secret. और जितने भी चतुर लोग हैं या फिर बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से जानते तो हैं, पर फिर भी वो प्रभु जो है उन्हें अपने आप को प्रकट नहीं करते। God revealed the secret to all these uneducated fishermen and disciples of Jesus Christ and humble sisters and people who are living in sin, who are humble in heart to follow Jesus Christ. जो प्रभु में नम्र हैं, जो अपने पापों को मान लेते हैं और जो भले ही अनपढ़ हैं, मछुआरे हैं या फिर दीन जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है। The Apostle Paul was a very educated, very rich man. जो प्रेरित पौलुस थे वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। But he said, I had to throw away all my education and my riches and say that they are all just rubbish so that I can know Christ. और उन्होंने कहा कि मेरा जो पढ़ना लिखना है या फिर मेरा जो धन है वे सब कचरा है मेरे प्रभु के आगे, मैंने प्रभु को जान लिया है उसके आगे। And because of that, he received such a great revelation about Jesus Christ. और इसी के कारण प्रभु ने अपने आप को उन पर बहुत ऐड से प्रकट किया है। And because he humbled himself, he has written so many of letters with so much of inspiration for the Holy Spirit. और क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन किया, इसलिए बहुत सारी पत्रियां और बहुत सारे पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के द्वारा उन्होंने बहुत सारी पत्रियों को लिखा है। And what is the mystery of godliness? Verse 16, the second part says, he was revealed in the flesh and vindicated in the spirit. और प्रभु के जैसा हो जाने का भेद क्या है उसमें लिखा, प्लीज रिपीट। Verse 16 it says, he was revealed in the flesh and was vindicated in the spirit. अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। So, Jesus came with the same, in our same flesh, with all the temptations that you face and I face. और जिस प्रकार हम शरीर में आए हैं, यीशु मसीह भी उसी समान ठीक उसी शरीर में आए थे और जिस प्रलोभन का सामना हम करते हैं ठीक उसी तरह उन्होंने भी किया। Everything, temptation that we face, sexual temptations, anxieties, anger, all these things, love of money, love of fame, the Lord Jesus also went through all these struggles. और जितने प्रलोभन हमारे सामने आते हैं, चाहे वो लैंगिक हो या फिर हमारे पैसों का प्रेम हो, गुस्सा हो, चिंता हो, ये सारे तरीके के जो प्रलोभन हैं, पैसों का प्रेम, ये सब प्रभु के सामने आया है। Because the Holy Spirit helped him to say, not my will, Lord, in this flesh, but your will be done. पर उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रभु इस शरीर में मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। Now, if I want to do my will today, then I will fall into sin. और यदि मैं आज अपनी इच्छा को करना चाहूं तो प्रभु मैं पाप में गिर जाऊंगा। But if I say, Lord, whatever is your will, let it be done. Show me what is to be done. I will do your will. हमें कहना है कि प्रभु जो कुछ भी आपकी आज के लिए इच्छा है, प्रभु आप मुझे बताइए, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए।
Sometimes we want certain things. कई बार हमें बहुत अलग अलग बातों को चाहिए रहती है, Certain things we want and certain targets we want to do. और कुछ चीजें हमें चाहिए रहती है या फिर कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें करनी रहती है। But we must tell the Lord, Lord, if it is your will, then give it to me. If it is not your will, I don't want it. हमें कहना है, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो ये मुझे दीजिए, यदि ना हो तो कोई बात नहीं है। Lord, I'm willing to wait for your time in everything. मैं इच्छुक हूँ प्रभु आपके समय का इंतजार करने के लिए। But if I want to do it in my time, then I will get really restless, angry, irritated, and start falling into all sorts of sins. और यदि मैं अपनी इच्छा से करना चाहूँ तो मैं गुस्सा करूंगा और मैं पाप में गिर जाऊंगा और सब प्रकार का जो गलत है वो मेरे साथ होगा। That is why people fall into all sort of sins in the home, in the workplace, in the church also. There's all sort of fighting and quarreling. और इसलिए लोग पाप में गिर जाते हैं अपने काम की जगह पर, हमारे अपने घर में, कलीसिया में, क्योंकि वे अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। They want to do what they want to do. क्योंकि वे वही करना चाहते हैं जो वे करना चाहते हैं। And they're not willing to wait for God and God's timing. वो अपने प्रभु के समय का इंतजार नहीं करते, प्रभु की इच्छा को जानते नहीं। Jesus waited for God's timing and God's in everything. Said, Lord, whatever the Father says to do, and when the Father says to go, I will go on that particular time. और यीशु मसीह ने अपने पिता का इंतजार किया, जहाँ कहीं उनको पिता बोलते थे वो जाते थे, जो कुछ वो बोलते थे वे करते थे। For example, when Jesus was 12 years old, he knew the Bible so well that he could discuss with all the priests and the high priests, and they were also wondering how he got such a lot of wisdom. और उदाहरण के रूप में जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, तब वे सब बातों को जानते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर सकते थे। And he told his parents, don't you know that I have to be in my father's business? और उन्होंने अपने माता पिता से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे पिता के घर में होना आवश्यक है? He would ask Father, son, shall I start doing miracles now, healing the blind and turning the water into wine? Father said, no, wait till the age of 30. और उन्होंने पिता से पूछा होगा कि क्या पिता मैं अपने कार्य को शुरू करूं, क्या मैं चमत्कार करना या फिर पानी पर चलना या फिर कुछ ऐसे काम? तो पिता ने कहा नहीं, 30 वर्ष तक होने तक का इंतजार करो। So he patiently waited, doing the carpentry work, poor carpenter, and getting the money and feeding his family and helping till the Father said, now you start your ministry. और बहुत ही धीरज के साथ उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, बड़े ही का काम किया, और फिर 30 वर्ष के बाद उन्होंने अपने कार्य को शुरू किया। That was the secret. He never wanted to do his will. He wanted to do the Father's will. और यही भेद है, उन्होंने कभी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, हमेशा अपने पिता की इच्छा को जानना चाहा और उसको पूरा किया। That is why he never fell into sin and he became an example for you and me. और कभी भी वो पाप में नहीं गिरे और हमारे लिए और मेरे लिए और आपके लिए एक उदाहरण है। And that is why we also can follow in the footsteps of Jesus. और हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, जरूरी है। The choice is ours. और जो है चुनाव जो है वो हमारा ही है। Lord, what is your will? Please show me and I will do it. प्रभु क्या आपकी इच्छा है, मुझे बताइए, मैं उसको करूंगा। Many times we rush around and do so many things and ultimately make a mess and we fall into depression and ask God to forgive us. और कई बार बहुत सारी बार हम जल्दबाजी कर लेते हैं, फिर हम सब बिगाड़ा कर देते हैं और फिर प्रभु से माफी मांगते हैं। Then we say, Lord, after all we are human. After all I'm a human being. I'm doing so many wrong things. और फिर कहते हैं कि प्रभु क्या करूं, आखिरकार तो मैं इंसान ही हूं और सिर्फ गलत बातें मुझसे हो जाती है। This is what most of the believers say. कई विश्वासी ऐसा कहते हैं। And because of that, they never get any victory over sin. इसी कारण उन्हें कभी भी पाप पर जो है जय नहीं पा सकते हैं वो। They fall into the same sin over and over again till they die. और बार-बार उसी पाप को दोहराते जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। They ask God for forgiveness and God will take them to heaven. Sorry brother. They ask God for forgiveness for sins and God forgives their sins and they take them to heaven. वो अपने पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु से, प्रभु उन्हें क्षमा करते हैं और स्वर्ग में लेकर जाते हैं। So they never make much progress in their spiritual life. पर उनकी आत्मिक जीवन में वो कुछ उन्नति नहीं कर पाते।
but they are ready to do all sort of service for the Lord. That in the Old Testament also, the people did lot of service for the Lord. और प्रभु के लिए बहुत सारे कार्यों को भी करते हैं वो. Many believers ask, what service are you doing? तो क्या सेवकाई कर रहा है? हाँ, इस तरीके से सवाल करते हैं कि आप क्या सेवकाई करते हैं. See, God wants primarily for us to change our character and become like Jesus. प्रभु तो है हमारे जीवन को सबसे पहले तो है वो बदलना चाहते हैं. प्रभु अपने समान बनाना चाहते हैं. He doesn't want us to evangelize the whole world, go here, there, and do so much work. और प्रभु हमारी सेवकाई को ऐसे ज्यादा नहीं चाहते हैं कि जैसे हम इधर उधर जाएं प्रभु और वो अन्य तरीके के काम करें. That's why he told Mary also, Martha, you're worried and bothered about so many things. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से भी कहा था कि मार्था तुम बहुत सारी बातों की चिंता करती हो. Yeah, she was serving the Lord and Lord's people. हाँ, वो प्रभु की सेवा कर रही थी और प्रभु के लोगों की भी सेवा कर रही थी. Was not going the worldly way, but she was doing in her own plans and own ideas. पर वो अपने ही तरीके से अपने ही विचारों के द्वारा वो सब कार्य को कर रही थी. But Mary was sitting and listening to the word of God, and then she was obeying. और मरियम जो थी प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी उनके वचनों को सुन रही थी. And that is how Mary grew spiritually. और इसी कारण जो थी मरियम जो थी वो आत्मिक रूप से बढ़ रही थी. But Martha was losing her temper and very restless. और फिर मार्था ने जो था अपना जो गुस्सा है वो खो दिया. वो गुस्सा करने लगी. So we can be also like Martha or Mary. और हम भी या तो मार्था या फिर मरियम की तरह हो सकते हैं. The Holy Spirit teaches us to deny our own will and to do the will of God. और पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि हमारी इच्छाओं को ना कहकर हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पर चलें. And then you and I can become more like Jesus, and that is what the Heavenly Father desires. और फिर क्या होगा कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएंगे. यही प्रभु की इच्छा है. And people in the old covenant, we can grow. In the new covenant, we can grow very close to the Lord. और नए विश्वास नए वाचा के अनुसार हम प्रभु के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे. There's a verse in Matthew chapter 11. I think और एक 11, yeah, Matthew chapter 11. मत्ती 11 उसका 11 वचन. Truly I say to you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of God is greater than he. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है. So this is a fantastic statement which Jesus made. और ये बहुत ही अच्छा एक वाक्य है जो प्रभु ने बोला है. Sometimes we cannot believe कई बार हम विश्वास नहीं करते that the people in the kingdom of God, in the new covenant, the least of them is greater than John the Baptist. और यहाँ पर लिखा है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ. No. It is that we in the kingdom of God, in the new covenant, the least person in the kingdom of God in the new covenant is greater even than John the Baptist. और बहुत ही कम ऐसा है जो नए विश्वासियों जो नए वचन में जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा हो. Yes, John the Baptist, Jesus said, is the greatest in the old covenant. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है सबसे बड़ा है. He saw Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को देखा है. He was a fearless preacher. और वो एक बिना भय से वो प्रभु का वचन बांटते थे. But Jesus said, those who are in the kingdom of God, even the smallest person, the youngest person, is greater than John the Baptist. और प्रभु ने कहा कि जो छोटे से छोटा है वह भी उससे बड़ा है. Because why is it? Because we have the power of the Holy Spirit given to us to live an overcoming life. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम जो है जय पाया हुआ जीवन जी सकते हैं. John the Baptist also got a lot of doubt in their life and was wondering whether Jesus was the right person. All doubts also began to come into their life, his life. और जो था यूहन्ना ने भी एक बार जो था वो संदेह किया था कि क्या यही है यीशु मसीह जिसकी हम बाट जो रहे हैं.
So we have the advantage because if we humble ourselves and cry out to God, the Holy Spirit comes into our life and we have direct fellowship with God. पर हमें अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि हमारा जो सीधा जो ताल्लुक है प्रभु यीशु मसीह से है। And then God gives us victory when we are in fellowship with Him. और प्रभु हमें जय दिलाएंगे यदि हमारी संगति यीशु मसीह के साथ बनी रहे। This is a great thing. If you just think about it, we must meditate upon it. और ये बहुत ही उत्तम अद्भुत बात है यदि हम इस पर मनन करें तो। So we can be free from anxiety, tension, all by the power of the Spirit. We can love our enemies. Even though we fight for it, God gives us power to overcome. हम पापों पर जय पा सकते हैं, हमारी चिंताओं पर, और यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा कई सारे पापों पर हम जय पा सकते हैं। In the old covenant, there was no overcoming sin. और पुराने नियम में, पुराने वाचा में कोई पापों पर जय पाना नहीं था। But in the new covenant, the Lord Jesus expects you and me to overcome sin. पर नए वाचा में प्रभु हमसे बोलते हैं कि तुम पापों पर जय पा सकते हो। For example, to the letter to the 7 churches, Jesus said, "He who overcomes will be blessed." और जैसे कि 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि धन्य है वे जो जय पाते हैं। Yes, so the Lord expects us to be overcomers. प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम जय पाएं। And in our situations in life, we can give thanks to God. और खराब परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। And that is the work of the Holy Spirit in our life, because we say, "Lord, let your will be done." And we see the glorious will of God being done in our life, and we rejoice even in our troubles. और हमें धन्यवाद करना है कि पवित्र आत्मा जो है हमें दिया गया है, और दुख मुसीबतों में भी हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। So our aim and ambition in life is to become like Jesus Christ. हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के समान बनना। And that is why God arranges so many difficulties, problems, delays in our life, so that we can rejoice. Lord, I thank you that the main purpose in my life is to please you and to get your character. इसलिए प्रभु अनुमति भी देते हैं ताकि हम बहुत सारी दुख, मुसीबत, तकलीफों से होकर जाएं, पर तब भी हमें क्या करना है? स्थिर खड़े रहना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, और प्रभु को से कहना है कि प्रभु मुझे आपके समान होना है। The main purpose is not for the ministry. जो हमारा जो उद्देश्य है वो सेवकाई करना नहीं है, But the main purpose is to be like Jesus Christ and to get his nature, his character, his joy, his peace, and his love. सबसे पहले तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह के समान होना है, प्रभु यीशु मसीह के रूप और उसकी समानता में प्रभु की शांति, आनंद और प्रेम में बने रहना है। And when that focus is there, then everything else, our ministry also follows. और यदि हमारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा तो फिर सब कुछ चीजें रहेगी, हमारी सेवकाई भी चलती रहेगी। That is the secret. और यही एक भेद की बात है। So all our restlessness and all our anxiety and tension about the future, what will happen, will go. Say, Lord, I thank you that you are with me. Show me my sin. Help me to repent. You please help me. और हमारी अशांति, हमारी चिंताएं सब कुछ चली जाएगी। फिर प्रभु से हम कहेंगे कि प्रभु आप मुझे बताइए आपकी इच्छा क्या है, मुझे मदद कीजिए कि मैं पश्चाताप कर सकूं और मैं एक जय पाया हुआ जीवन जी सकूं। I thank God that God has done so much work in my life so that I can become like Jesus Christ. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में कई कार्य किए हैं और प्रभु ने मुझे कई पापों पर जय दिलाई है। And I've got still so much further to go. और अभी भी कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन में जो अभी मुझे और सुधार करना है। My thought life, the ways as I speak, the Holy Spirit will say, this is not the way to do it. Change. Then and I cry out to God, God will help me. और मेरे विचारों में या फिर कुछ ऐसी बात जहाँ पर पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं कि ये तरीका नहीं है, यीशु मसीह ऐसे नहीं करते थे, वहां पर मुझे प्रभु जय देंगे। Till the last day of our life, we can make progress. हमारे जीवन के आखिरी दिन तक भी हम उन्नति पा सकते हैं। The Apostle Paul said, I press on. और प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो है सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। Yes, I'm going forward. I'm making every effort to go forward. और मैं हर एक प्रकार का बल लगा रहा हूँ, हर एक प्रकार की ताकत जिससे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। So that I can be like Jesus. That is the most important thing in my Christian life. ताकि मैं यीशु मसीह के समान हो जाऊं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एक मसीह के जीवन में।
So may the Lord open our eyes to see this as the most important thing every day of our life. और प्रभु हमारी आंखों को खोले कि हम इसको सबसे महत्वपूर्ण बात जाने जैसे हमारे जीवन में. So then we'll learn to react in that way and by the power of the Holy Spirit. ताकि हम उसी तरह बर्ताव करें हमारे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा. Amen. Amen. You can hear Brother Rathuswamy share, and other brothers and sisters can share on the same line that how God is changing us. Okay? Chalo. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद. 1 John chapter 2 verse 6. पहला यूहन्ना 2 उसका 6 वचन. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था. So as we heard Romans 8:28-29, our aim in the life is to be like Jesus Christ in this world. और यहाँ पर भी हमने वचन में यही सीखा कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि यीशु मसीह के समान बनना. So we have to do everything as Jesus did in his life. और हम वैसा ही करना है जैसा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया था. Jesus Christ did everything to please God. यीशु मसीह ने अपने जीवन की हर एक बात को इसलिए किया कि पिता को प्रसन्न कर सके. So we ourselves to do that what Jesus wants to do in our life. और हमें इसलिए करना है कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए. So same 1 John chapter 2 verse 28. पहला यूहन्ना 2 उसका 28 वचन. And now little children abide in him, that when he appears we may have confidence and not ashamed before him his coming. हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो. And 3 chapter 3, 1 John chapter 3 verse 3, and everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. पहला यूहन्ना 3 उसका 3रा वचन. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है. Yes, my dear brothers and sisters, we have to work out our own salvation by the grace of God. और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने उद्धार के लिए कार्य करना है. If we say abide in him, we will not sin. और sorry brother. If we say abide in Jesus Christ, we will not sin. और यदि हम कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम कभी पाप नहीं करेंगे. We hate sin. हम पाप से नफरत करेंगे. To hate sin is the fear of God. और पाप से नफरत करना प्रभु का भय मानना है. So if we keep his words and fear God, then God will bless us not to sin and strengthen us. Praise God. और यदि हम प्रभु का वचन माने, अपने हृदय में रखें, तो प्रभु हमें सामर्थ देंगे कि हम उसके समान जी सकें. आमीन. We can hear Brother Raju share, and then after that, let's see how this. मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ. परमेश्वर इस दिनों बहुत वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दे रहे थे. तो एक वचन था जो प्रभु ने बताया था, लूका के अध्याय 9 में 23. वहां पे लिखा था कि हर दिन हमें प्रभु करे कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो हर दिन क्रूस उठा के आए. तो इसमें प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि हर दिन जो कुछ भी मुझे करना है, अपनी जिम्मेदारी जो प्रभु हमारे जीवन में देते हैं उसके करते हुए प्रभु के साथ साथ में मुझे चलना है. क्योंकि प्रभु अपने समय में जब रहते थे तो शरीर में रहने के बाद प्रार्थना और विनती और जोर से प्रभु को चिल्लाकर रो रो के भी प्रार्थना करते थे. तो इससे प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि हर समय तुम प्रभु के पिता की संगति में चलते रहना. और प्रभु कभी कभी मौका भी देते, जब प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु का वचन सुनाने के लिए मुझे मौका देते हैं. जैसे
रिसेंटली स्कूल्स में भी क्लास में वगैरह भी मौका मिलता है गॉस्पेल शेयर करने का। कभी कभी कुछ चैप्टर्स में क्रिश्चियनिटी ऐसा वर्ड भी आता है, तो उसमें भी उनको कई सारे बुक्स में मैंने जब पढ़ा है उन लोग को, तो क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, उसमें थोड़ा ही बताया था कि 12 डिसाइबल और थॉमस के बारे में और ऐसा। लेकिन मैंने उनको और भी डिटेल्स में बताया, तो सब बहुत ही उनको बताया गया कि उसमें वो नहीं लिखा था कि जीसस डाई फॉर सिंस एंड रेज फ्रॉम द डेड, तो वो सब चीजें मेंशन उसमें नहीं किया था। तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि उनको और भी डिटेल में प्रभु के बारे में बताऊं, तो सबको बताने का भी अवसर मिला। और सब एक दोस्त फ्रेंड्स भी था, वो भी बाइबल को उसने पढ़ा और ऐप में डाउनलोड करके उसने पढ़ा, और वो बता रहा था कि मैंने जेनेसिस पढ़ा। तो ये सब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, और प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन, हालेलुया। Anybody want to share, Brother Ajit? कोई भी है? Anybody else? Briefly, how God is helping you by the power of the Holy Spirit to overcome sin. How we can follow Jesus. कोई भी share कर लीजिए. Manisha. Anybody else? 3-4 मिनट है, 2 जन तो fast we can share. Ramesh, if is there, I don't know. Yadav ji. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं आज एक दानियल का पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, 6ठा अध्याय और वचन 23। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ ब्रदर जी। जी जी बोलिए। 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को एक को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकल गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तो यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि देखिए, दानियल को एक खड्डे में उनको डाला गया और वो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन से पूरा भरोसा करके उसने चला। तो उसी तरह से अभी हम लोग को भी परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करके और आनंद मना के जीवन में और शांति मनाते हुए प्रभु से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन में आनंदित देंगे। और कई तरह से भी अपना जीवन में कठिनाई, दुख, संकट भी आता है, तो भी हमको परमेश्वर से ही प्रार्थना करके कहना है, प्रभु ये समस्या में हमें मदद करिए। तो जरूर परमेश्वर मदद करता है, क्योंकि दानियल को भी देखिए वो खड्डा में डाला गया तो भी परमेश्वर उनको कुछ हानि नहीं होने दी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, समस्या आता है, हर एक इंसान के पास समस्या आता है, लेकिन हम तो विश्वासी हैं, परमेश्वर का बच्चे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा करके ही हमें चलना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे लिए सब जो कुछ होता है हमारे जीवन में हमारा भलाई के लिए करता है। तो हमारा जीवन में कोई टेंशन लेने के लिए हमको जरूरत नहीं है। प्रभु के ऊपर देखेंगे, प्रभु हमको संभालेंगे। तकलीफ होता है कई दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए प्रभु, लेकिन प्रभु को बोलना, प्रभु मैं आपको, मेरा जीवन आपके हाथ में है। हम तो शैतान बोलेगा आप मर जाएंगे, तो प्रभु का वचन कहता है आपका जो मरने का समय प्रभु ने ऑलरेडी डिसाइड किया। आप प्रभु की इच्छा जैसे चलेंगे तो आपका मरने का टाइम फिक्स्ड है, एक दिन आगे एक दिन पीछे भी नहीं होगा।
प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्लान किया है, एक योजना बनाया है रोज के लिए। इसलिए सो हम प्रभु से बगैर एनी फियर, हमारे पास कोई भय होने की जरूरत नहीं है। सो शैतान हमको डराता है, ऐसा होगा वैसा होगा, हम लोग डर जाते हैं। पवित्र आत्मा हमको भय के ऊपर हमको भेजे देता है। हम कितना सारा टेंशन में और भय आते थे, अरे अरे क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अरे अभी क्या होगा। प्रभु हमको संभाले, अभी तक संभाला है, अभी भी संभालेंगे फ्यूचर में। धन्यवाद के हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं मैं इस समय। थैंक यू लॉर्ड। मेरा इच्छा नहीं करना चाहिए, आपके इच्छा में, आपका प्लान में मुझे चलना है। आप ही प्लान मुझे खोलेंगे, उसमें मैं चलूंगा। प्रभु मेरा मनमानी से मुझे चलना नहीं है, जो कुछ भी आपका इच्छा है मुझे करना है। हम लोग जवान थे जब प्रभु में पहले पहले आए थे, तो अपना अपना इच्छा करना चाहते थे, इसलिए हमारा जीवन में इतना टेंशन आते थे, अभी क्या होगा, कल के बारे में क्या होगा। प्रभु कहते क्या, क्यों ऐसा सोचते हैं। प्रभु हमको आज अभी तक संभाला है ना, इसलिए जरूर आगे संभालेंगे। और अपना प्रार्थना तो में हमेशा रहना चाहिए। प्रार्थना में प्रभु हमको आगे लेके जाएंगे। तकलीफ में हमको गुजरना जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहेंगे। प्रभु हमको आश्वासन देंगे, प्रभु हमको प्रोत्साहन देंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नया वाचा के लिए के बारे में हमको पहले ही सोचना चाहिए कि प्रभु जैसा हम जी सकता है, वी कैन वॉक एज जीसस वॉक, as it says 1 John chapter 2 verse 6, and we can purify ourselves। हमको दिन प्रतिदिन हमारा जीवन स्वच्छ कर सकता है प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा। सो वी कैन प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। आज प्रभु मेरे जीवन में एक उद्देश्य है, लोगों को कोई उद्देश्य नहीं, कई बिलीवर्स को भी बिल्कुल निराश है, लेकिन प्रभु हमको एक रास्ता दिखाया, न्यू एंड लिविंग वे इट सेज, एक नया रास्ता है और जीवंत रास्ता है। रोज हमको दिन प्रतिदिन हम प्रभु के साथ, प्रभु के जैसा हम चलेंगे और प्रभु के जैसा हम जिएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग प्रभु के लिए जिएंगे हर दिन, और ये गवाही भी देंगे प्रभु हमारा जीवन में सब चीज भलाई के लिए किया है।